And before we move ahead, I would like to take a moment to welcome our Honorable Registrar Sir, Mr. Sanjay Khanduri. Welcome, sir. Along with Mr. Kevin Richard, Assistant Manager, Planning and Development and DSW, along with all our faculty members and my dear friends. It gives me immense pleasure to welcome our esteemed guest for today, Mr. Sanchit Agarwal, along with his team, Jayantika Gupta, Pavneet Maan, and Abhinav Sharma. Mr. Sanchit is a final year BTech student from Punjab University, Patiala. Yes, but what truly separates him and set apart is his two successfully built up startups. Deeply passionate about full stack web development and machine learning, he has mentored about 1,000 plus students till date. So please give him a huge round of applause. Mr. Sanchit, you can come. The stage is yours. Thank you. Hi everyone. कैसे हो भाई? Are you comfortable in Hindi? How many of you are comfortable in Hindi? English? Okay, great. So please be high on energy. Okay. So how many of you scroll Instagram Reels? Just raise your hands. How many of you are Instagram? How many of you students scroll Instagram Reels? I guess majority of the students. Okay, so how many of you like post or Reels? How many students post on Instagram regularly? Very few. Baki introvert, private accounts, public accounts. Okay, so this is how my journey began. From scrolling endlessly on Instagram to working with brands like Tira, Dot & Key, and even promoting Mukesh Ambani's son's India's largest wedding, 5,000 crores wedding. I was a person behind promoting that wedding over the Instagram Reels. आप सबने 4 महीने पहले मुकेश अंबानी के बेटे की शादी ज़रूर देखी होगी Instagram पे. सबने enjoy करा होगा. भाई मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है, 5,000 करोड़ लग रहा है. ये न्यूज़ सब तक पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? किस किस को पता है इस चीज़ के बारे में? Sorry? I hope you all know this, right? So I was a person behind that. I was working as an influencer marketing manager. Okay, I was also handling freelancing work with this team and many other brands. ठीक है, मैं भी आप लोगों में से ही था एक. I'm basically 4th year student. My name is Sanchit Agarwal and I'm a 4th year student from Punjab University, Patiala. So can you just tell me how many of you are first year students? How many first year students are there? Okay, second year? Okay, almost second year. BTech, I guess. BTech. Okay, anyone from BCA? Okay, no worries. So basically what all going to be the session for today is I will be sharing you my journey, how was the journey of first 3 years and what I am doing now, right? So struggling hard enough after clearing my JEE, still getting admission in a tier 3 university. It was very difficult for me to sit in such an environment where there is no energy around, right? I tried everything, whether it's digital marketing, simple marketing, freelancing, everything, so that I can earn something. Okay, I can get better placement after my 3 years, after my 4 years. I had no idea what I am doing, no clarity of everything. Then suddenly an Instagram reel appeared on my screen. It was by the founder of Oyo, Ritesh Agarwal. What the reel was saying, if you are holding a phone of 10,000 rupees in your hand and if you are not earning even 10 rupees out of that, there is no benefit of holding that phone. Okay, let me show you something. This is an 8,000 phone I bought in +2 class and till now I have earned 4 lakh rupees using this phone. Okay, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है. ओनली थिंग इज़ आपको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा बेशरम बनना पड़ेगा. अगर आप चुप करके बैठे रहोगे ना क्लास में कि गोइंग विद द फ्लो वाला एक सिस्टम बना के रखोगे तो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं. अगर आप एक्सट्रोवर्टली अपने आप को आगे लेके आते हो, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हो, आप लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो, राइट? आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए. सेम चीज़ मैंने अप्लाई करी. मेरे यूनिवर्सिटी में देयर आर लॉट ऑफ बंक्स, देयर आर लॉट ऑफ स्ट्राइक्स विच मे गिव मी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम ताकि मैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट करूँ. मेरे को ये नहीं था कि यार मेरे को टेक वाली उसमें ही जाना है, मेरे को पता नहीं था इतना. तो मेरे को जो ठीक लगा, अगर मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, यार यहाँ पे कुछ फ्रीलांसिंग का वर्क है, आई कॉन्टैक्टेड दैट क्लाइंट. ओके, अगर मेरे को कुछ पता लगा वेब डेवलपमेंट का क्लाइंट है, आई जस्ट कॉन्टैक्टेड हिम. अब आप लोग सोच रहे होगे यार हमें तो स्किल्स नहीं आती हैं, हम सेकंड ईयर में हैं, हमारा फर्स्ट ईयर वेस्ट हो चुका है. सेम थॉट्स मेरे माइंड में भी थे. मेरा भी फर्स्ट ईयर ऐसे ही वेस्ट हुआ था. मेरे को पता नहीं था फाउंडेशन कैसे बिल्ड होती है, कौन सी लैंग्वेजेस कर रहे हैं. अगर मैं सी कर रहा हूँ या मैं C++ कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका स्कोप क्या है, इसको करके बेसिकली मिलेगा क्या. ठीक है, ऐसे थॉट्स जब हम माइंड में लेके आते हैं देन डेफिनेटली हम अपने हैंड्स को चलाते हैं. ठीक है, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए. अब 2 तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, या तो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा या वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा.
ठीक है। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप ही की यूनिवर्सिटी, आप आज यहाँ पे स्टूडेंट्स हो, आप यहाँ पे खड़े हो गए मेरे साथ, ठीक है। आप अगर फेल हो जाते हो, यू गेट सो मच एक्सपीरियंस। फेल होना बुरी बात नहीं है। मेरे 2 स्टार्टअप्स रह चुके हैं, ठीक है। एक स्टार्टअप फेल हुआ था, एक स्टार्टअप को मैंने बहुत अच्छे लेवल पे क्लोज करा था, ठीक है। हम उसको क्या बोल सकते हैं कि इट्स लाइक अ इंटर्नशिप, इट्स अ गुड इंटर्नशिप। हमें बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है, ठीक। राइट नाउ व्हाट यू आर थिंकिंग कि यार बंदे ने बता दिया यार 2 स्टार्टअप्स पहले रह चुके, बंदा कर क्या रहा है, हमारे सामने खड़ा होकर बोल कैसा रहा है, व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट इज अचीविंग इन लाइफ। ओके, सो लेट मी टेल यू, आई एम द co-founder of Nishchit. I've co-founded a platform called Nishchit. It's an edtech platform for the engineering students. Whether you're pursuing BTech or you're pursuing BCA, this platform is all for you. अब इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने के पीछे थॉट्स क्या थे? The thought was that I was in my 3rd year sitting, struggling, demotivated, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर वाले बोल रहे हैं यार तू बीटेक कर रहा है और नॉन टेक में घुसा हुआ है, मार्केटिंग कर रहा है, ये तो तेरा नहीं है स्कोप, तेरे को कुछ टेक के अंदर करना है तभी अच्छा पैकेज मिलेगा। हर एक ब्राउन फैमिली, हम जिसको बोलते हैं ना, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है, वी आर फ्रॉम द ब्राउन फैमिलीज, एक कॉमन थॉट्स होते हैं कि यार अच्छा पैकेज सिक्योर करना है आफ्टर द 3rd ईयर, आफ्टर द 4th ईयर एक अच्छी इंटर्नशिप क्रैक करनी है। उसका वे आउट क्या होगा? जो मेरे सीनियर्स थे, दे वर फ्रॉम द कोविड बैच, इतना वो मेरे को बता नहीं पाए। दे वर लाइक यार तेरा 1st ईयर है, 2nd ईयर है, तो चिल करना, इतना टेंशन क्यों ले रहा है। बट मेरे को थोड़ा अलग जाना था, मेरे को अपने अलग रास्ते बनाने थे, तो मैंने खुद से बनाए। 3rd ईयर में बैठा, ये डायरी लेके आया हूँ, इसके अंदर प्रॉपर मैंने लिखना शुरू करा। आज भी ये डायरी आप लोगों के सामने है, सब कुछ लिखा, मेरे को प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। दैट्स हाउ निश्चित वॉज बिल्ट, ठीक। निश्चित एक ऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म नहीं है, इट्स ऑल व्हाट सोल्यूशन व्हाट अ Tier 3 और अ Tier 2 यूनिवर्सिटी पीपल फेसेस। Tier 2 Tier 3 बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रही हैं? प्रॉपर मेंटरशिप नहीं है, रोड मैप नहीं मिल रहा है, हम यूट्यूब पे जा रहे हैं, किसी रैंडम यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लिया फिर से आइडिया नहीं लगा, पेड कोर्सेज ले लिए, पढ़ लिया फिर आइडिया नहीं लगा, PDF स्क्रॉल कर ली, बोरिंग है। 4th ईयर में जाके क्या होता है यार, 3.5 लाख की जॉब ले लेते हैं, 10,000 पर मंथ का पैकेज भी होगा ना, हम स्टार्ट कर लेंगे, स्ट्रगल कर लेंगे, बिल्डअप कर लेंगे। बट इज दिस अ गुड थॉट? आप जस्ट थोड़ा रिवाइंड बैक करो अपनी मेमोरी के अंदर। जब आप लोग +2 में थे, आपने क्या सोचा था? बीटेक करेंगे, अच्छा पैकेज सिक्योर करेंगे। 1st ईयर में एक स्टूडेंट के माइंड में थॉट्स क्या होते हैं? हम लोग गूगल में जाएंगे, ठीक है। 2nd ईयर तक आते आते थॉट्स क्या हो जाते हैं? TCS में जाएंगे। 3rd ईयर तक इन्फोसिस, 4th ईयर तक यार तू बस मेरे को रख ले, अनपेड इंटर्नशिप भी दे दे, मैं कर लूँगा, मेरे को सर्टिफिकेट दे देना, इसके बाद मैं ग्रो कर लूँगा। आई होप ये थॉट सबको आते होंगे माइंड में। अभी आप लोग 2nd ईयर में, बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे माइंड में, आप लोग फियर ही हो, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन्स बहुत सारी हैं। 1st ईयर वेस्ट हो गया, 3rd ईयर में इंटर्नशिप्स कैसे क्रैक करें, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ मीडियम्स, ठीक है। अब आप मेरे को बोलोगे देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स फॉर द फ्रीलांसिंग। अपवर्क का किसने नाम सुना? अपवर्क, फाइवर, एनीवन? कुछ बच्चों ने सुना होगा ना, अपवर्क या फाइवर ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे हम फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स को कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप लोग अगर मेरे से पूछो कि आपने भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करे, माय आंसर इज टोटली नो। मैं आज तक इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं गया। मेरे क्लाइंट्स मेरे को कहाँ से मिले? फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। आप लोग जो डेली रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो ना, अपने कंटेंट की क्वालिटी को अच्छा करो कि आपके फीड के अंदर ऐसे कंटेंट आए जहाँ पे उनको कुछ काम की नीड है। अगर आपको काम नहीं भी आता, मैं जब 2nd ईयर में था, मैंने एक वेब डेवलपमेंट का क्लाइंट अराउंड 30,000 के अंदर क्लोज करा। इट वाज अ फ्रंट एंड वेबसाइट, ठीक है। अब मेरे को तो फ्रंट एंड वेबसाइट भी बनानी नहीं आती थी। मैंने क्या करा, आई कॉन्टैक्टेड हिम, मैंने उसको बोला कि यार तेरा काम हो जाएगा, अब मैं जैसे मर्जी कराऊँ, मेरी हेडेक है, ठीक है। इस तरह मैंने उस क्लाइंट को पकड़ा। देन व्हाट आई डिड, आई जस्ट कॉन्टैक्टेड वन ऑफ माई सीनियर्स हु वाज वेरी गुड एट वेबसाइट डेवलपमेंट। उसको मैंने समथिंग अराउंड 5 to 6,000 दिए, एंड बीच का जो कमीशन था इट्स अराउंड 25,000। आई जस्ट टेक इट, ठीक है। दिस इज वॉट हाउ यू नीड टू यूज योर ब्रेन, राइट। अब थोड़ा निश्चित के ऊपर वापस आते हैं, आई जस्ट गेट साइड। ओके, सो निश्चित बेसिकली क्या कर रहा है? निश्चित एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जो आपको एकेडमिक्स प्रोवाइड करेगा, आपको प्लेसमेंट का स्टफ प्रोवाइड करेगा, रोड मैप्स प्रोवाइड करेगा, मेंटरशिप सेशंस प्रोवाइड करेगा, नेटवर्किंग प्रोवाइड करेगा, ऑल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज नो मनी इन्वॉल्व इन इट। इजंट इट ग्रेट कि आप लोगों को कुछ स्पेंड ही नहीं करना, आप लोग ऑलरेडी अपनी कॉलेज की फीस दे रहे हो। आई गॉट टू नो देयर इज अ सेमेस्टर फीस ऑफ अराउंड 1 लाख, ठीक है। आप इतना अमाउंट आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, तो वाई डू यू नीड कि हाँ अब 10,000 20,000 पर सेमेस्टर और ज़्यादा स्पेंड करें किसी और चीज़ के ऊपर, या रैंडम यूट्यूबर्स को फॉलो करें जिसकी आपको क्लैरिटी भी नहीं है। व्हाट डू पीपल डू? अपने फ्रेंड से पूछा यार मेरे को C++ करना है, तू मेरे को यूट्यूबर बता, मैं कर लूँगा, ठीक है। मेरे को DSA करना है, यूट्यूबर बता, मैं बस उसको कर लूँगा फॉलो। डू यू रियली थिंक कि वो बंदा आपको कंप्लीट वो चीज़ करवा रहा है कि नहीं करवा रहा? इसकी एश्योरिटी आपको कौन देता है? यू डोंट हैव एन एश्योरिटी, राइट। आप लोग अगर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने की बात करते हो, आप यूट्यूब से प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हो, रिज्यूमेस के अंदर उन प्रोजेक्ट्स को लिख देते हो, उसके बाद क्या होता है?
आपके जो रिज्यूमेज होते हैं शॉर्ट रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्ट क्यों होते हैं? आप लोग यूट्यूब के प्रोजेक्ट्स को डायरेक्टली कॉपी करके अपने रिज्यूमे के अंदर डाल देते हो, विच इज़ अ वर्स्ट हैबिट। आई एम इन द 4th ईयर, आई एम ऑल्सो अंडरगोइंग द प्लेसमेंट ड्राइव। ठीक है, हमारे यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आ रही हैं, तो 1-2 कंपनीज में मैं भी बैठा हूँ जस्ट चेकआउट करने के लिए हाउ दे आर कंडक्टिंग द इंटरव्यू। ठीक है, तो मैं इंटरव्यूज़ में गया, मेरे जो फ्रेंड्स थे तो मेरे को पता चला दे आर गेटिंग रिजेक्टेड। व्हाट्स द रीज़न? दे आर जस्ट कॉपिंग द प्रोजेक्ट्स फ्रॉम यूट्यूब, उसको बिल्ड करें VS कोड के ऊपर, डायरेक्टली रिज्यूमे के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब कंपनीज़ वाले पागल तो नहीं है, अगर उनको 6 लाख 8 लाख रुपए देने हैं वो हर चीज़ की रिसर्च करेंगे। उनको चाहिए आप कुछ यूनिक बिल्ड करो। व्हाट्स यूनिक? अपना माइंड चलाओ। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ हैकाथॉन्स गोइंग ऑन, उसके प्रोजेक्ट्स को देखो, उसके प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करो, अपने रिज्यूमेस के अंदर डालो। एंड अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट बहुत स्टैंड अलोन स्टैंड कर सकता है, मेक इट अ स्टार्टअप। मैंने क्या करा, निश्चित कोई हैकाथॉन का प्रोजेक्ट नहीं था, ये मेरा विजन था कि यार जो प्रॉब्लम्स मेरे को फेस हो रही हैं बीइंग अ टायर 3 स्टूडेंट। टायर 3 यूनिवर्सिटी आप सब समझते होगे, जहाँ पे बहुत लो लेवल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, बहुत कम मेंटरशिप होती है, टीचर्स इतने अवेलेबल नहीं होते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हम टायर 3 को टैग कर देते हैं। हर किसी का ड्रीम होता है IITs जाएँ, बट IIT तो नहीं जा पाए। अब क्या हम इस चीज़ के ऊपर लेके बैठे रहे यार IIT तो जा नहीं पाए, अब ठीक है जो हो रहा है जैसा हो रहा है चलता रहेगा, गोइंग विद द फ्लो, दैट्स अ वर्स्ट हैबिट, राइट। अपने को जहाँ पे भी हमें जो भी सिचुएशंस मिल रही हैं उसके अंदर सर्वाइव करना है, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट। ये चीज़ कैसे हो सकती है? जस्ट स्टार्ट स्क्रोलिंग, कुछ भी स्क्रोल कर रहे हो, अच्छा कंटेंट स्क्रोल करो, राइट। निश्चित के अंदर क्या है, आप निश्चित.in विजिट करोगे, NISHCHIT.in, उसके अंदर आप विजिट करो। आपके जितने भी एकेडमिक्स के नोट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के, फ्रॉम द 1st सेमेस्टर टू द 7th सेमेस्टर, आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, खुद से इनपुट नहीं देना, आपको जस्ट जाके लॉग इन करना है और उससे पढ़ने बैठ जाना है। ठीक है, अब MST से इसके लिए क्या होगा, जो आप नोट्स पढ़ रहे हो, आपके एकेडमिक्स के जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो MSTs हैं चाहे वो ESTs हैं, आप इनको अच्छे से क्लियर आउट कर सकते हो। बट आर दिस सफिशेंट टू गेट अ प्लेसमेंट? प्लेसमेंट्स के लिए तो एकेडमिक्स इतना सफिशेंट नहीं होता ना, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा आउट ऑफ बाउंड्री जाके कुछ करना पड़ेगा। वो चीज़ क्या हो सकती है? हमारे पास रोड मैप सेक्शन है। अब रोड मैप सेक्शन के 2 तरह के रोड मैप सेक्शन होते हैं। एक तो होते हैं थ्योरी बेस्ड, बोरिंग्स, PDFs, लॉन्ग PDFs, उसको कोई भी पढ़ना नहीं चाहता। यार मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं भी 2nd ईयर में था, कभी मेरे को ऐसी चीज़ों में कभी इंटरेस्ट ही नहीं आता जब तक मेरे को कुछ वीडियो फॉर्मेट के अंदर मिल ना जाए, राइट। सो रोड मैप्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रोड मैप्स के अंदर आपको प्रॉपर रोड मैप्स विद रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। रिसोर्सेज कौन से हैं? रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आज स्टूडेंट्स गूगल माइक्रोसॉफ्ट के अंदर प्लेस्ड हैं, जिन यूट्यूब वीडियोस से उन बच्चों को हेल्प मिली है वहाँ तक पहुँचने के लिए, वही यूट्यूब वीडियोस उस रोड मैप सेक्शन के अंदर अवेलेबल हैं। तो इजंट इट ग्रेट? आपको यूट्यूब पे जाके भी सर्च करने की नीड नहीं है, आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है, जस्ट गो टू निश्चित.in, रोड मैप्स, फुल स्टैक डेवलपर रोड मैप, सिलेक्ट, स्टार्टिंग, प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स का भी सेक्शन है, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग, अब एकेडमिक्स हो चुका है, रोड मैप्स हो चुका है, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? इट कैन बी इंटर्नशिप, इट कैन बी गुड हैकाथॉन्स। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द कंप्लेंट्स कि हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती है, चंडीगढ़ में कौन से हैकाथॉन्स हो रहे हैं, ठीक है, पटियाला में कौन से हैकाथॉन्स हो रहे हैं, कौन से स्टार्टअप इवेंट्स हो रहे हैं। आई मेट मन्नत इन आई थिंक 2 months ago इन अ स्टार्टअप इवेंट इन चंडीगढ़, ठीक है। अब इसकी इन्फॉर्मेशन मन्नत तक पहुंची है, क्या आप लोगों के पास पहुंची थी? नहीं पहुंची थी, तो उसका मीडियम क्या है? वी हैव अ व्हाट्सएप कम्युनिटी ऑफ 1000+ स्टूडेंट्स, जिनके अंदर हम डेली और ट्वाइस 1-2 दिन बाद हम हैकाथॉन्स का और इवेंट्स का अपडेट्स करते हैं। तब उस व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बनो, आपको हैकाथॉन्स का पता चल जाएगा, इवेंट्स का पता चल जाएगा, ठीक। आपको हैकाथॉन्स के लिए टीम फॉर्मेशन में हेल्प चाहिए, हमारी टीम आपको उसके अंदर भी हेल्प कर देगी। आपको इंटर यूनिवर्सिटी टीम्स बनानी है, सेम कॉलेज की टीम्स बनानी है, टोटली हम पे छोड़ दो, हम सब कुछ आपको करके देंगे। ओनली थिंग इज आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए। इफ़ यू हैव द कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी ऑफ योर लाइफ, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का मतलब ये नहीं होता कि आपने रेवेन्यू कितना जनरेट कर लिया, ठीक है। रेवेन्यू कभी भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन नहीं होती। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसके पास लाइफ की क्लैरिटी होती है और वो कंसिस्टेंट रहता है। कंसिस्टेंटली अगर आप कुछ कर रहे हो, आप डेफिनेटली कुछ फोड़ के ही जाओगे, वरना देयर आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट जो ऐसे बीटेक करते हैं, बीटेक के बाद निकल जाते हैं एंड दे जस्ट कि हाँ यार सरकार तो ऐसी है, हमें जॉब नहीं मिली है, ये तो सरकार की गलती है, जॉब्स नहीं है, ये वो ब्लेम गेम करते रहते हैं। आपके ऊपर है, आप अपने पेरेंट्स को क्या जवाब दोगे? 3 साल बाद, 2 साल बाद पेरेंट्स ना ये सुनने के लिए नहीं बैठे हैं कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। देयर आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं वो लोग। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको फ़ायदा उठाना पड़ेगा। अब आप लोग बोलो कि यार हमें स्पून फीडिंग करो, तो ऐसा सिस्टम नहीं होता। आप लोग कॉलेज लाइफ में आ चुके हो, स्पून फीडिंग वाला कोई काम नहीं है। द ओनली थिंग इज हम आपको प्लेट ला के दे रहे हैं, प्लेट के अंदर सब कुछ दे रहे हैं, उतना आप कंज्यूम कर सकते हो। यू हैव अ गुड हैंड्स, राइट। सो इंटर्नशिप्स, हैकाथॉन्स, इसका मैं बता चुका हूँ। एकेडमिक्स हो चुका है, रोड मैप्स हो चुका है।
व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट सेक्शन इज़ नेटवर्क सेक्शन. अब आप लोग बोलोगे यार हम सिटी यूनिवर्सिटी से हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट वी वांट कि जो स्टूडेंट्स आईआईटी के अंदर बैठे हैं या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं. ठीक, अब देयर आर टू थिंग्स, आइदर यू गो टू लिंक्डइन पे जाओगे, डायरेक्टली ढूंढोगे, आपको डिफिकल्ट लगेगा कि यार पता नहीं ये कौन सा स्टूडेंट है, हम इसको कैसे ढूंढ सकते हैं. गो टू नेटवर्क सेक्शन ऑफ निश्चित.in, वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स के लिंक्डइन एज वेल एज गिटहब मिल जाएगा. आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हो जाएगा. गिटहब के साथ भी उनको फॉलो कर सकते हो. गिटहब का सबसे बड़ा बेनिफिट, आपको उनके प्रोजेक्ट्स का पता चल जाएगा. सपोज XYZ पर्सन इज IITian, वो कौन से प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, आपको वो चीज़ का पता चल जाएगा. यू डोंट हैव टू सर्च. ठीक है, जस्ट निश्चित पे जाओ, सब कुछ आपको मिल रहा है. व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? अब आप सोचोगे यार सब कुछ आपने बता दिया, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? प्लेसमेंट्स आएंगी या नेक्स्ट ईयर हमें पेड इंटर्नशिप्स क्रैक करनी है. इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए हाथ में एक अच्छा रिज्यूमे होना चाहिए. ठीक है, टेक्निकल इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए वो क्वेश्चंस आने चाहिए. एप्टीट्यूड को क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस आने चाहिए. देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स, लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस जो एप्टीट्यूड टीच कर रही हैं, बट फॉर होम? द गवर्नमेंट. जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको हर यूट्यूब चैनल उनको एप्टीट्यूड सिखा रहे हैं. बट आप लोग बीटेक कर रहे हो, आपको अपने लेवल का एप्टीट्यूड चाहिए जो बीटेक यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है. वो चीज़ कहाँ से होगी? निश्चित के एप्टीट्यूड सेक्शन से. एंड येस, फॉर योर मोर इन्फॉर्मेशन, वन ऑफ द स्टूडेंट हु आई गाइडेड 3 months अगो, एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आता है मेरी ही यूनिवर्सिटी से, शी वॉज फ्रॉम 4th ईयर, कि संचित ऐसे ऐसे हो गया, मैंने अपने 3 साल 4 साल ख़राब कर दिए, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा, 2-3 महीने बाद प्लेसमेंट्स हैं एंड मेरे फ्रेंड्स सारे आगे बढ़ चुके, मेरे को कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है. व्हाट शुड आई डू? आई जस्ट टोल्ड हिम डोंट बाय एनी कोर्स. ठीक है, तेरे को कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, DSA इतना कर ले, ज़्यादा भी नहीं करना. एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट. अच्छा जस्ट अ सेकेंड, DSA सबको पता होगा व्हाट्स DSA? कौन कौन कर रहे हैं DSA? हु आर द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग DSA ऑन रेगुलर बेसिस? अच्छा, लीड कोड कौन कर रहा है? लीड कोड, हु आर द लीड कोड स्टूडेंट्स? ओके, वेरी फ्यू. सी, एक चीज़ सुन लो ध्यान से, DSA के बिना टेक लाइन के अंदर जॉब्स नहीं है. आप किसी भी लाइन में जाना चाहते हो, आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाना चाहते हो, ऐप डेवलपमेंट के अंदर जाना चाहते हो, DSA आपको करना पड़ेगा. DSA इज नॉट डिफाइंड बाय द सॉल्विंग लॉट ऑफ लीड कोड क्वेश्चंस. अगर आप लॉजिक बना पा रहे हो, आप लीड कोड के 50 क्वेश्चंस भी कर लेते हो ना, यू आर गुड डेवलपर. ठीक है, लॉजिक से ही हर जगह यूज़ होते हैं. चाहे आप एक वेबसाइट बिल्ड करने लग जाओ, चाहे ऐप बिल्ड करने लग जाओ, चाहे साइबर सिक्योरिटी की लाइन में चले जाओ, DSA करना पड़ेगा. द सेम थिंग आई टोल्ड टू माई फ्रेंड, DSA कर ले, एरेज, स्ट्रिंग्स, स्टैक्स, क्यू एंड लिंक लिस्ट. उसने उतना ही करा. शी डिड अराउंड 35 क्वेश्चंस ऑन लीड कोड. ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आई टोल्ड कि यार तू एक लैंग्वेज पकड़ ले, उसको थोड़ा सा मास्टर कर ले. एंड लास्ट वीक हमारी यूनिवर्सिटी में H&R ब्लॉक कंपनी आई थी, केरला कंपनी, 6 LPA का पैकेज. शी गॉट प्लेस्ड. शी वॉज लाइक फर्स्ट स्टूडेंट हु गॉट प्लेस इन दैट. इजंट इट ग्रेट? 3 महीने की मेहनत में उसकी प्लेसमेंट लगी, बट 3 महीने कंसिस्टेंसी वाली मेहनत. अगर आप सोचोगे यार अगर उस लड़की की प्लेसमेंट लग सकती है, हम भी 3 महीने की मेहनत कर लेंगे, हमें क्या पड़ी है 2-2, 3-3 साल पढ़ने की, राइट? बट हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता. लक ऑल्सो मैटर्स. अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, आप अपने स्टार्टअप्स भी बिल्ड कर सकते हो. एंड सिटी यूनिवर्सिटी के अंदर इतने इवेंट्स होते हैं, मेरे को पता चला, देयर एंटरप्रेन्योरशिप सेल इज सो मच एक्टिव. सो आप लोग इन्वॉल्व हो उसके अंदर, ताकि आप स्टार्टअप्स बिल्ड करो, उसको प्रमोट करो, एक्सपेरिमेंट करते रहो लाइफ के साथ, कुछ अच्छा ही करोगे. फेल हो जाओगे, फिर से खड़े हो जाओ. ठीक है, सो ये तो रहा प्लेसमेंट्स का बता दिया. प्लेसमेंट्स, नेटवर्क्स, इंटर्नशिप्स, दिस इज ऑल व्हाट निश्चित.in इज ऑफरिंग. अब हमने ना एक चीज़ हमने सीक्रेटली स्टार्ट करी थी, दैट वाज सुपर 30. हमने एक सुपर 30 नाम से कुछ स्टार्ट करा निश्चित के अंदर सीक्रेटली. व्हाट वाज दैट? बेसिकली स्टूडेंट्स अप्रोच्ड अस कि भैया आप बता रहे हो यार यूट्यूब से कर लो, ठीक है, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, बट जब तक हमारे सिर पे कोई डंडा नहीं मारता ना, हम तब तक पढ़ नहीं सकते. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, किस को ऐसा लगता है कि यार हमें एक मेंटर चाहिए होता है हमारे सिर के ऊपर, जो हमें डांटता रहे तभी हम पढ़ पाएंगे. कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं? हाउ मेनी फ्यू? अच्छा, मतलब आप सब लोग यूट्यूब से डायरेक्टली पढ़ सकते हो, यू डोंट नीड अ मेंटर, राइट? वेरी गुड. सपोज देयर आर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग शर्मा रहे होगे कि यार नहीं हम हाथ नहीं खड़ा करेंगे, दोस्त हंसने लग जाएगा कि ये तो खुद से पढ़ भी नहीं सकता, इसको पढ़ाने के लिए भी कोई बंदा चाहिए. ठीक है, हमने सुपर 30 नाम से एक मेंटरशिप सेशन स्टार्ट करा. सुपर 30 के अंदर था क्या? वी इन्वाइटेड इंजीनियर्स फ्रॉम गूगल एज वेल एज अमेजॉन. हमने उन इंजीनियर्स को इन्वाइट करा, नॉट फॉर द मेंटरशिप सेशंस. हम नहीं चाहते कि आपको एक 30 मिनट्स का सेशन मिले, उसके बाद आप लोग चले जाओ. अब मैं सिर्फ 30 मिनट्स का सेशन देने आया हूँ यहाँ पे, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है. इस सेशन से आप कुछ मोटिवेशन लेके ज़रूर जाओगे कि यार वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है, बट उससे काम नहीं चलता. आपको कुछ चाहिए, आपको रेगुलर असाइनमेंट्स मिले, रेगुलर सेशंस मिले. तो इसके लिए हमने क्या करा, सुपर 30 नाम का एक 3 months का बैच लॉन्च करा. उस बैच के अंदर हमने स्टूडेंट्स को DSA के लिए एज वेल एज स्किल के लिए ट्रेन करा. स्किल के अंदर देयर आर 2 ऑप्शंस, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट एज वेल एज AIML. जो मेंटर्स थे उनकी प्रोफिशिएंसी सुनने एक बारी. जो हमारा AIML मेंटर है
ही इज़ एक्स सैमसंग, एक्स माइक्रोसॉफ्ट, करंटली इन अमेजॉन, और उसको माइक्रोसॉफ्ट से 55 लाख का पीपीए मिल चुका है। इस लेवल के मेंटर्स हम सुपर 30 के अंदर लेके आते हैं निश्चित के थ्रू, राइट। डीएसए की बात करें, 150 प्लस लीड कोड क्वेश्चंस 3 मंथ्स के अंदर कवर करवाते हैं। बेसिकली आपको टोटल डीएसए, टोटल स्किल्स 3 मंथ्स के अंदर हम कवर करवा रहे हैं, दैट टू एट योर प्लेस, ऑनलाइन सेशंस फॉर 3 मंथ्स। ओके, सो अभी मेरे को जस्ट एक रैंडम नंबर चाहिए आपकी साइड से। व्हाट डू यू थिंक इस सुपर 30 की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? अगर हम इतने अच्छे लेवल का मेंटर लेके आ रहे हैं, डीएसए भी करवा रहे हैं, स्किल भी करवा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी बनवा रहे हैं, व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ सुपर 30? व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ 3 मंथ्स बैच? एनी रैंडम नंबर्स? एनीवन? कोई भी यार, रैंडम नंबर्स जस्ट, कि 3 मंथ्स का बैच है, स्किल, डीएसए सब कुछ है, इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? यस, कुछ भी। अरे एक तो रैंडम नंबर गेस करो। चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। जो इसकी कॉस्ट है 3 मंथ्स की, इट्स नॉट इवन 2000 पर मंथ। 3 मंथ्स की कॉस्ट 2000 भी नहीं है। मतलब 3 मंथ्स की जो कॉस्ट है, इट्स 1999, विच इज़ नॉट इवन 700 पर मंथ। इतना हम चार्ज भी नहीं कर रहे हैं आप लोगों को अपस्किल करने के लिए। व्हाट्स द ओनली विजन? टू एम्पावर द टायर 3 स्टूडेंट्स। टायर 3 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एम्पावर करते हैं। सेशंस होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइव क्लासेस, लाइव पढ़ाते हैं मेंटर्स। आप 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हो हर किसी के साथ। इज़न्ट इट ग्रेट? राइट। सो आई थिंक दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। एक चीज़ याद रखना, आप लोग 9 to 5 कॉलेज लगा रहे हो, आप 9 to 5 जो भी कर रहे हो ना, इससे आप डिफाइन नहीं कर सकते आपका फ्यूचर कैसा होगा। जो चीज़ आप 5 to 9 घर जाके करते हो, दैट डिफाइंस योर फ्यूचर, कि आप लोग आने वाले टाइम में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनोगे या आपकी लाइफ के साथ क्या होगा। आर यू गोइंग टू द पार्ट ऑफ अ रैट रेस और यू आर गोइंग टू सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर डूइंग 5 to 9। थैंक यू, दैट वॉज फ्रॉम माई साइड। That was the end of the session today, and by the end of today, Nischint.in की जितनी भी LinkedIn प्रोफाइल्स हैं या फिर जो भी उनके अंदर हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डीएसए, लीड कोड या फिर गेट एग्जामिनेशंस की तैयारी जो भी है, वो आप लोगों के अनऑफिशियल ग्रुप्स में सर्कुलेट करवा देंगे हम लोग। सो दैट वाज इट, एंड थैंक यू टू संचित एंड हिज टीम। थैंक यू एवरीवन। Wait.